Hello, myself is Gargi Sharma, Assistant Professor in DAV Centenary College. Today's topic is cost sheet and unit costing. It is an important topic for BCom Pass final year students. The first important question from this chapter is what is cost sheet, why it is prepared, prepare a cost sheet format with imaginary figures. First of all, I will explain the meaning of cost sheet. Cost sheet is a statement which presents the various costs incurred at different stages of business operations in a tabular format. A cost sheet is a statement prepared at periodical intervals of time which accumulates all the elements of the costs associated with the product or production job. Students, कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में होती है जो आपको किसी भी बिजनेस ऑपरेशन की या किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स को प्रेजेंट करने में हेल्प करती है. इसके अंदर कॉस्ट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ये एक टैबुलर फॉर्मेट में होती है, एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में होती है और इट इज़ प्रिपेयर्ड एट पीरियोडिकल इंटरवल्स. इसे पीरियोडिकल इंटरवल्स पर बनाया जाता है. इंटरवल मे बी अ मंथ, मे बी 3 months, maybe 6 months. But it is prepared at periodical intervals of time decided by the management. Now, there are some benefits of cost sheet which are the reasons for preparing the cost sheet. First, for calculating the total cost breakup. Second, for determining the selling price. Third, it facilitates comparison. Fourth, it facilitates managerial decision making. Fifth, it helps in preparing budgets. First benefit, for calculating the total cost breakup. Cost sheet shows the breakup of total cost into different elements. For example, material cost, labor cost, overhead cost. It also shows the cost per unit of the output. Cost sheet different elements दिखाती है हमें cost के. ये हमें मटेरियल कॉस्ट भी बताती है, लेबर कॉस्ट भी बताती है. इसके अलावा जितने भी ओवरहेड्स हैं उनके बारे में भी हमें ये सारी जानकारी देती है. ये हमें लास्ट में ये भी बताती है कि जितना भी आउटपुट है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है. नाउ द सेकंड बेनिफिट, डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस. कॉस्ट शीट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और ऑफ अ सर्विस. The cost sheet ascertains the cost at each stage of the product and also the total cost of the product, in which a profit margin is added and the selling price is ascertained. Now the third, it facilitates comparison. Cost sheet helps in the comparison between two periods of time. It helps the organization to investigate the reasons whether there is increase in cost or there is a decrease in cost. If there is increase in cost, an organization can control the cost by taking the timely action. Cost sheet help करती है कंपेयर करने में दो टाइम पीरियड की कॉस्ट को. अगर किसी भी प्रकार से कॉस्ट बढ़ रही है तो ऑर्गेनाइजेशन टाइमली उसे कंट्रोल कर सकता है कंपैरिजन के बेसिस पर. नाउ द फोर्थ, फैसिलिटेटिंग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. कॉस्ट शीट मैनेजर्स की हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में भी. मैनेजर्स इसकी हेल्प से डिसीजंस ले सकते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्शन और परचेजिंग ऑफ ए कंपोनेंट, कि हमें कंपोनेंट अपने पास बनाना है या बाहर से परचेज करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट शीट. मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द कोटेशन प्राइस और वी कैन से द टेंडर प्राइस विद द हेल्प ऑफ द कॉस्ट एस्टिमेट प्रोवाइडेड बाय द कॉस्ट शीट. Next, preparation of budgets. Organizations can prepare budgets with the help of cost sheet. Cost sheet are also estimates and budgets are also the estimates. So, organizations can prepare the budgets with the help of the cost sheet. Control of cost. By preparing the cost sheet at regular intervals, cost can be estimated in advance and can be controlled at correct time after the comparison with the actual expenditure. कॉस्ट शीट की हेल्प से हम कॉस्ट का एस्टिमेट पहले से लगा सकते हैं जिसकी वजह से हम इसे टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपैरिजन. नाउ द परफॉर्मा ऑफ कॉस्ट शीट. Before
going to the pro forma of cost sheet, we should know the various elements used in the cost sheet. The first part of the cost sheet is prime cost. How to calculate the prime cost, or we can say prime cost is made up of three important expenses: direct material cost, direct labor cost and third is direct expenses. जितने भी डायरेक्ट खर्चे आते हैं, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट आती है, वो सब मिलकर प्राइम कॉस्ट बनती है. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉस्ट शीट इज फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट. जब हम प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं, देन वी विल गेट द फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट. नाउ द थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शीट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वी कैन से ऑफिस कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता लगाने के लिए हमें फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करना होता है. नाउ द फोर्थ स्टेप ऑफ द कॉस्ट शीट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स. व्हेन वी ऐड selling and distribution overheads to the cost of production, we will get the cost of sales. Now, the last step of the cost sheet is sales. For calculating the sales, we have to add a profit margin in the cost of sales. जब हम cost of sales के अंदर profit margin को add कर देते हैं, तो हमारे पास sales आ जाती है. Profit margin या तो cost का percentage होता है या फिर ये selling price का percentage होता है. This is the pro forma of cost sheet. This is the pro forma of simple cost sheet, where first of all we will calculate the prime cost. प्राइम कॉस्ट के लिए हमें तीनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, जो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट में आपको दिखा भी रखे हैं. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट लेबर को हम डायरेक्ट वेजेस नाम से भी डिनोट कर सकते हैं. आपको एग्जाम के अंदर इमेजिनरी फिगर्स यूज करने के लिए कहा जाएगा फॉर्मेट में. आप कितना भी अमाउंट यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको सभी अमाउंट्स को ऐड करना होता है टोटल कॉस्ट का पता लगाने के लिए. आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्राइम कॉस्ट, आपको इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने होते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड्स आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर अमाउंट. फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, एनी फैक्ट्री ओवरहेड यू कैन शो इन द कॉस्ट शीट. नाउ द नेक्स्ट part which you have to add is office and administration overhead. फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद आपको उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करना होता है. आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू ऐड इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. जितने भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें इसमें ऐड कर दिया जाता है. नाउ यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स. इन कॉस्ट ऑफ सेल्स you will have to add the profit percentage. आप profit margin 20% of cost of sales, 25% of cost of sales, कितना भी आप ले सकते हैं imaginary figures के लिए, और cost of sales में ऐड करके आप sales को find out करके दिखा सकते हैं. imaginary figures के अंदर आपको cost sheet के फॉर्मेट में अपर राइट हैंड साइड पर आउटपुट भी दिखाना होगा. You can take 1000 units, you can take 500 units, you can take 100, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है. और आपको इस तरीके से एक इमेजिनरी फिगर्स के साथ फॉर्मेट बनाना होगा अगर क्वेश्चन आता है तो. द सेकेंड क्वेश्चन विच कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर इज व्हाट इज यूनिट कॉस्टिंग, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस, हाउ अ कॉस्ट शीट डिफर्स फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मीनिंग ऑफ यूनिट कॉस्टिंग. यूनिट कॉस्टिंग is also known as cost per unit. It means it is the total cost of producing one unit of a product or service. And the formula for calculating the unit cost is total cost of production upon number of units produced. Unit costing का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्शन की पर यूनिट की कितनी कॉस्ट है. That is the unit costing. Now, एडवांटेजेस ऑफ यूनिट कॉस्टिंग. फर्स्ट, प्राइसिंग. यूनिट कॉस्टिंग की हेल्प से बिजनेसेस कंपिटिटिव प्राइसेस को सेट कर सकते हैं जो उनके लिए प्रॉफिटेबल भी है, जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स भी उनके पास हमेशा रिटेन रहेंगे. नाउ द सेकंड, डिसीजन मेकिंग. यूनिट कॉस्टिंग टेक्निक की हेल्प से बिजनेसेस जो है टाइमली डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग द लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड अदर डिसीजंस ऑल्सो. नेक्स्ट, performance evaluation. Unit costing also help the businesses to evaluate the performance
of different product lines or product processes. यूनिट कॉस्टिंग की हेल्प से कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट लाइंस के बीच में भी डिसीजंस ले सकता है कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कौन सी कम प्रॉफिटेबल है. जो प्रोडक्ट लाइन उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है उसे वे कंटिन्यू रखते हैं और जो प्रॉफिटेबल नहीं है उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को वो कम कर देते हैं ताकि कॉस्ट को कंट्रोल करके प्रॉफिट को कमाया जा सके. नाउ द नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन. यूनिट कॉस्टिंग कैन हेल्प द बिजनेसेस आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव. यस, यूनिट कॉस्टिंग की हेल्प से बिजनेस से भी पता लगा सकते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, कि उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है प्रोड्यूस करने के लिए. जिस प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट ज्यादा लग रही है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है, उसे वो इंप्रूव कर सकते हैं या उसे वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. सो बिजनेसेस कैन देन फोकस रिसोर्सेज ओनली ऑन दोज एरियाज विच आर प्रोवाइडिंग देम द ऑप्टिमल एफिशिएंसी. ये सिर्फ उसी प्रोडक्ट या उसी सर्विस पर अपना पैसा लगाएंगे जहां से उन्हें सही प्रॉफिट हो रहा है या फिर ज्यादा एफिशिएंटली जो उनको प्रॉफिट दे रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ यूनिट कॉस्टिंग इज नेगोशिएशन. यूनिट कॉस्टिंग कैन हेल्प द बिजनेसेस नेगोशिएट बेटर टर्म्स विद द सप्लायर्स. Yes, if you are applying the unit costing in your business, you get the negotiating power on the basis of which you can negotiate the better terms with the suppliers because you are able to control the cost, you are able to produce more at the minimum cost because of the unit costing. Now the next is cost reduction. Unit costing can help the businesses to identify the opportunities to reduce cost and implement changes. यूनिट कॉस्टिंग की हेल्प से बिजनेसेस आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी या कौन सा काम करके उन्हें कम से कम कॉस्ट हो सकती है और उसका यूज करके वो अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंटेड चेंजेस को भी ला सकते हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो. नाउ द नेक्स्ट इज फ्यूचर प्लानिंग. यूनिट कॉस्टिंग बिजनेसेस की हेल्प करते हैं कि वो अपने कॉस्ट स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर सकें फ्यूचर के लिए प्लान करने के लिए ताकि वो फ्यूचर में उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करके चल सके. दिस कैन हेल्प विद प्रिपेयरिंग बजट्स एंड एस्टिमेटिंग बिड्स ऑन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. यहां पर बिजनेसमैन बजट्स का यूज कर सकते हैं बिकॉज बजट्स आर ऑल्सो द एस्टिमेटेड expenses. Now the next topic is difference between cost sheet and cost account. Now the difference between cost sheet and cost accounts. दोनों ही टर्म्स हमें कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो कॉस्ट शीट हो चाहे वो कॉस्ट अकाउंट हो, बट इन दोनों में कुछ डिफरेंस है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे. पहला, कॉस्ट शीट एक डॉक्यूमेंट है जो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिटेल प्रोवाइड करता है एक स्टेटमेंट के फॉर्म में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, चाहे 1 महीने की कॉस्ट, चाहे 3 महीने की कॉस्ट और चाहे वो 6 महीने की कॉस्ट हमें प्रोवाइड करती है स्टेटमेंट. नाउ कॉस्ट अकाउंट भी हमें कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं बट ये एक अकाउंट के फॉर्म में हमें वो सारी इंफॉर्मेशन देता है. सेकेंड, कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्क. जब हमारा काम चल रहा होता है उसके दौरान हम रेगुलर इंटरवल पे कॉस्ट शीट बनाते रहते हैं. बट कॉस्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क. कॉस्ट अकाउंट तभी बनाया जाता है जब काम पूरा हो जाता है. थर्ड, कॉस्ट शीट के अंदर डबल एंट्री सिस्टम का यूज नहीं किया जाता. कॉस्ट अकाउंट इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम. कॉस्ट शीट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कॉस्ट अकाउंट बट कॉस्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द कॉस्ट शीट. फिफ्थ, कॉस्ट शीट इज नॉट यूज्ड for the reconciliation of cost account and financial account, but cost account is used for the reconciliation of cost account and financial account. Cost sheet is helpful in comparison of 2 time period, but cost account are not helpful for the comparison between 2 time period. Cost sheet helps in the cost control. Cost account is not directly helpful in
controlling the cost. Cost sheet is helpful in price determination, but cost account are not directly helpful in the price determination. कॉस्ट शीट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हमारी हेल्प करती है, बट कॉस्ट अकाउंट डायरेक्टली हमारी इस चीज में हेल्प नहीं करता. नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट शीट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस. कॉस्ट शीट एक तरह से जो हमारे खर्चे होते हैं उसका एस्टिमेट होता है, बट जो कॉस्ट अकाउंट होता है वो बेस्ड होता है एक्चुअल एक्सपेंसेस के ऊपर. ये एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस पर बेस्ड नहीं होता. लास्ट, cost sheet gives the clear information about all the elements of cost. Cost account cannot give the clear information of all cost elements. Next topic is tender price or quotation. This is for 2 marks only. First of all, meaning. The price at which supplier offers his goods for sale is known as tender price or quotation. Now, द डिटर्मिनेशन ऑफ टेंडर प्राइस. किस तरीके से कोई भी सप्लायर अपना टेंडर प्राइस फिक्स करता है चीजों को सप्लाई करने के लिए. फर्स्ट, सप्लायर रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर. सबसे पहली चीज जो सप्लायर को चाहिए होती है, जो उसके पिछले टाइम पीरियड के प्राइम कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होती है या जो अदर उसके ओवरहेड्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करता है. दूसरा, सप्लायर हैज टू एसर्टेन द, उसे पता लगाना होता है कितने वेरिएबल ओवरहेड्स उसके होने वाले हैं, कितने सेमी वेरिएबल खर्चे उसके होने वाले हैं या कितने फिक्स्ड ओवरहेड उसके होने वाले हैं, और इन सभी का वो पता लगाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस. नाउ द नेक्स्ट, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर has to ascertain and find out the possible changes in the prices of material, rate of wages, other cost. टेंडर प्राइस फिक्स करने से पहले मैन्युफैक्चरर और सप्लायर पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो मटेरियल के प्राइसेस को या फिर वेज रेट को या अदर कॉस्ट को चेंज कर सके बजट के. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टेंडर प्राइस इज ओवरहेड्स एस्टिमेशन. Here overheads are also estimated on some basis, like work overheads are estimated on the basis of wages, administration overheads are estimated on the basis of work cost, it means factory cost, and the selling and distribution overheads are estimated on the basis of work cost. Now the next 2 marks question is meaning of production or manufacturing account. First of all, we will learn the meaning. According to Grover and Williams, the term production account is used to denote a particular form of manufacturing account, prepared in conjunction with the financial accounts in order to show the actual cost of producing the goods manufactured during the period under review. These accounts may be drawn up at short intervals, for example, monthly basis. Students, production account gives the information about the actual cost of producing the goods during a particular period. एक पर्टिकुलर पीरियड में जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें एक्चुअल में जो खर्चा आता है उसे अकाउंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट करता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और प्रोडक्शन अकाउंट. Now students, this is the format of production or manufacturing account. It is like cost sheet. Cost sheet is presented in the form of a statement, but production account is presented in the form of a account. It records all the actual figures of expenses. Cost sheet uses the estimated figures, but production account uses the actual figures of expenses. Like here you can see the opening stock of raw material plus purchases of raw material minus closing stock of raw material. We will get the cost of material consumed. This is the cost of direct material. Direct wages हमने इसमें ऐड की and we will get the prime cost. After getting the prime cost, we will add all the factory overhead in the prime cost to get the work cost. After getting the work cost, we will add all the office expenses in the work cost
and then we will get the cost of production. After cost of production, we will minus the closing stock of finished goods, and then we will get the cost of goods sold. In cost of goods sold, we will add all the selling and distribution expenses to get the cost of sales, and in cost of sales at last we will add the profit margin to get the sales. And this is the format of production or manufacturing account. I hope you understand the topic cost sheet and unit costing perfectly. This is enough theory from the chapter 6 for your exam. Now in next PPT I will explain the chapter 7, that is reconciliation. So wait for my next PPT. Thank you.